एक अरदास भाट कीरत की। गुरु रामदास राखो शरणाई। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न सकूं, तू ठाकुर ऊंच भगवान। जुगो जुग अटल चवर छत्र तख दे मालिक, हाजरा हजूर ज़ारा ज़हूर। शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन हाजूरी अंदर अमृत वेले पावन दरबार दियाँ हाजरियां भरे सतसंगी जनों, वड्डियां भागां वाले हो। अमृत वेले दे इन्हां पावन दीवानां विच आप जी जुड़ बैठ के वाहिगुरु जी दी पावन बाणी दे नाल आप जियां ने सांझ पाई है। साध संगत समा है गुरमत विचारां दा। बाबा फरीद साहब जी दी पावन बाणी जिन्हां दे सलोकां दी विचार आरंभी हुई है। अज दे पावन सलोक अंदर बाबा फरीद साहब जी मनुखता नूं की उपदेश बख्शदे ने। उन्हां पावन बचनां नाल सांझ पाउण तों पहलों मनोबिरतियां इकागर करो। इस पावन सलोकां नूं सरवण करिए, फिर गुरमत दा सिद्धांत असी दृढ़ करांगे जी। सतनाम वाहिगुरु जी। फरीदा कोठे मंडप माड़ियां, एत न लाए चित। मिट्टी पई अतोलवी, कोई न होसी मित। फरीदा मंडप माल न लाए, मर्ग सताणी चित धर। साई जाए संभाल, जिथे ही तो वंजना। साई जाए संभाल, जिथे ही तो वंजना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, अज दे इन्हां पावन सलोकां अंदर बाबा फरीद साहब जी ने इको प्रकरण है इन्हां दोहां सलोकां दा, जिन्हां अंदर बाबा फरीद साहब जी ने रहमत कीती। आखन लगे फरीदा कोठे मंडप माड़ियां, एत न लाए चित। कोठे तो भाव महल, जो पुराने समय अंदर राजे महाराजे ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣੇ। ਮੰਡਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵਕਤੀਆ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੰਡਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੜੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। इसे तरह बाबा फरीद साहब आखते ने कि कोठे मंडप माड़ियां। माड़ियां तो भाव जो छत दे उपर, कोठे दे उपर दूसरा फ्लोर बनिया है, वो माड़ी है। एत न लाए चित। बाबा फरीद साहब आखते ने कि इन्हां कोठे मंडप माड़ियां दे नाल ए इंसान तू चित ना जोड़, क्योंकि एक दिन ऐसा आना है जदों मिट्टी पई अतोलवी। संसार की यात्रा पूरी करके जदों, क्योंकि बाबा फरीद साहब इस्लाम धर्म नाल संबंध रखते ने, अपने सरां दे पक्के ने। ते जदों इंसान यात्रा पूरी करके गया कब्र दे अंदर, फिर कब्र दे अंदर दफना के उसके उपर मिट्टी पा दी गई।
ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਅਤੋਲਵੀ, ਅਤੋਲਵੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬਿਨਾ ਤੋਲੇ, ਅਮਿਣਵੀ ਮਿੱਟੀ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਸ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਕਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਮਿਣਵੀ ਮਿੱਟੀ ਉਸ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਸੀ ਮਿੱਤ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਮੰਡਪ ਮਾਲ ਨਾ ਲਾਏ, ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਜਿਹੜੇ ਮੰਡਪ ਨੇ, ਮਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਧਨ ਪਦਾਰਥ, ਸੰਪਰਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਮੰਡਪ ਮਾਲ ਨਾ ਲਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਨ ਨਾ ਲਾ। ਮਰਗ ਸਤਾਣੀ ਚਿਤ ਧਰ, ਮਰਗ ਤੋਂ ਭਾਵਦਾ ਹੈ ਮੌਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਤਾਣੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਤਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਲ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਇਤਨੀ ਬਲ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਰਗ ਸਤਾਣੀ ਚਿਤ ਧਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖ। ਸਾਈ ਜਾਏ ਸੰਭਾਲ ਜਿੱਥੈ ਹੀ ਤੋ ਵੰਜਣਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੰਭਾਲ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰ, ਉਸ ਘੜੀ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਜਿੱਥੈ ਹੀ ਤੋ ਵੰਜਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਅਖੀਰ ਅਪੜਨਾ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਘਰ ਬਾਹਰਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ। ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੜਾ ਨੇਹ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਮਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ, ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਸੱਚਾਈ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ, ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿੱਥੈ ਹੀ ਤੋ ਵੰਜਣਾ, ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ, ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਘਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬੀਰ ਗਰਬ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਉੱਚਾ ਦੇਖ ਆਵਾਸ, ਆਜ ਕਾਲ ਭੋਏ ਲੇਟਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਭੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਮੇ ਘਾਸ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਘਾਹ ਜੰਮਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੈਸਰੀ ਕੇ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ, ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਅਰ ਭਾਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਬਨਤਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਸਤਰੀ, ਸੁਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੱਚੇ, ਬੰਧਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਅਰ ਭਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਰਾ। ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਖੀਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਅਤੋਲਵੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਸੀ ਮਿੱਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਨਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧਪ, ਇਸ਼ਟ ਮੀਤ ਅਰ ਭਾਈ। ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੰਜੋਗੀ, ਅੰਤੈ ਕੋ ਨਾ ਸਹਾਈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਕਤ ਮਾਲ, ਕਨਿਕ ਲਾਲ ਹੀਰਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀ ਮਾਇਆ। ਮੁਕਤ ਮਾਲ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਕਨਿਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੋਨਾ।
ये सारे मन नूं रंजन देण वाले ने, मन नूं खुशी देण वाले ने। मनुख नूं धन मिल जाए, हीरे जवाहरात मिल जाण, मोतियां दी माला मिल जाए, बड़ा खुश होंदा है। गुरुदेव आखदे ने कि मुक्त माल कनिक लाल हीरा, मन रंजन की माया हा हा करत बिहानी अवध है। तां मैं संतोख ना पाया, पर कदे कोई संतोखी होए इन्हां दे विचों, सोचदा है कि होर प्राप्त हो जाए। ते गुरु अर्जन देव महाराज इत्थे ही बस नहीं, गुरुदेव आखदे ने कि हस्त रथ अस पवन तेज, चार तरह की फौज होए, चार तरह की सेना होए, हाथियां दी, रथां दे नाल, घोड़ियां दी वखरी और पैदल चलन वाली जिहड़ी सेना जिहड़ी होए, ये चार तरह की फौज होए। हस्त रथ अस पवन तेज धनी भूमन चतुरांगा, बड़ा धनीपति होए, बड़ा धन दौलत होए, जमीन जायदाद होए। संग ना चालियो इनमें कछुए ऊट सिधायो, नांगा इन्हां दे विचों कोई नाल जाण वाला नहीं, कि मिट्टी पई अतोलवी कोई ना होसी मित। बाबा फरीद साहब ने अपने पावन सलोकां अंदर रहमत कीती है। बाबा फरीद साहब आखते ने कि जदों जीव दे कोल ताकत सी, बल सी, ते ताकत दे विच, बल दे विच, हंकार दे जदों वो दरबार दे अंदर हाजिर हुंदा है, उसके दरबार दे विच हाजिर होने दे उपर जां जदों जंग जित के आंदा है, ते उहदी खुशामद दे विच नगारे वजाए जाते ने, धोसे वजाए जाते ने। इत्थे ही बस नहीं, जदों तुरदा है तो उहदे सीस दे उपर सोने का छत्र झूलदा है, उहदे अगे तूतियां वजाइयां जांदियां ने, शहनाइयां वजाइयां जांदियां ने, ते उसदे आण दे उपर वड्डियां वड्डियां सभावां दे विच उहदी खुशामद दे विच छंत गाए जांदे ने, कवितावां पढ़ियां जांदियां ने। पर जदों इंसान इस संसार रूपी घर दे चों गया, अज ना ही नगारे वजाए गए, अज ना ही सीस दे उपर छत्र झूलिया, ना ही उहदी खुशामद दे अंदर छंत पढ़े गए, ते जाके जमीन दे खड्डा खोद के उन्हों दफना दिता गया, उपर अमणवी जड़ी है मिट्टी पा दी गई, ते उस इंसान नूं, उस जमीन नूं विच दफना के सारे अपने अपने घर वापस परत आए। जिसका 4 दिन पहले राज सी, अज यतीमां दी तरह वो जमीन के अंदर दफन है। बाबा फरीद साहब वो आखते हैं कि फरीदा पास दमामे, जिन्हां दे पास दमामे सन, भाव के नगारे वजाए जाते सन, पास दमामे छत सिर, सीस दे उपर छतर चूरना, भेरी सड्डो रड, भेरी तो भाव शहनाइयां तूतियां वजाइयां जांदियां ने, ते रड तो भाव है छंत पड़े जाते सन। जाए सुते जिराण में थिए अतीमा गढ़, जाके जिराण दे अंदर कब्रस्तान दे जाके दफना दिते गए, ते अज यतीमां की तरह पे होए ने, कोई पुछण वाला उन्हां दा नहीं है। सिकंदर दी मां नूं जदों कह लगी ना कि मेरा सिकंदर किथे है, ते कब्रिस्तान दे विच बैठा होया, एक कवि ने बड़े सुंदर बचन लिखे ने, आखन लगी मां किहड़े सिकंदर की गल करदी है, इस कब्रिस्तान दे अंदर ते हजारां ही सिकंदर दफन ने, तू एक सिकंदर नूं लभदी है। इस धरती ने ते बेअंत ही सिकंदरां नूं इस धरती ने अपनी गोद के अंदर लिया हुए है। इसलिए बाबा फरीद साहब ने रहमत की। इतिहास के जिक्र आंदा है, इब्राहिम कदम करके नाम उस सूफी फकीर दा है। किसे वेले धन पदार्थ सन, धन दौल दे अंबार लगे हुए, बड़ा उन्हां दा लंबीरा इन्हां दा इतिहास है। मैं एको गल लैनी है कि इब्राहिम आदम दे घर दे बूहे दे सामने एक फकीर आया, ते फकीर ने क्या जो पहरेदार सी कि अज रात इस मुसाफिर खाने अंदर, इस सराह दे अंदर मैनू रहन दिओ, कल मैं तू चले जाना है। जो पहरेदार सी कह लगा, तेनू नजर नहीं आंदा ये मुसाफिर खाना नहीं, ये सराह नहीं, ये महल है, और ये इब्राहिम दा महल है।
ये गल जदों बार बार हो रही सी ते इब्राहिम के कन्नां दे आवाज़ पई। इब्राहिम ने क्या कौन है आण दिओ। वो फकीर अगे आया। इब्राहिम कदम जी उन्हां दे सामने वो फकीर कहता है कि मैं क्या अज रात मैनू इस सरां दे विच रहण दिओ। ते इब्राहिम कहन लगा ये सरां नहीं, ये मेरा अपना महल है, ये मेरा अपना घर है। वो फकीर कहन लगा कुछ समा पहला मैं आया इत्थे कोई होर सी। ते इब्राहिम ने क्या मेरा पिता सी, मेरे पिता जो इत्थे रहे ने, मेरे तो पहला मेरे पिता इत्थे वसदे रहे ने। ते फकीर ने कहा कि तेरे पिता तो पहला भी मैं किस नूं देखे है। ते इब्राहिम कहन लगा वो मेरे दादा जी सन, उन्हां दादा जी का बनाया हुआ ये महल है जिथे मैं अज रह रहा। ते फकीर ने कहा कि कल हो सकता है मैं आवां ते किथे कोई होर होए। ते इब्राहिम कहन लगा कौन होएगा, मेरा बच्चा होएगा या मेरी औलाद होएगी। फकीर हस पिया, आखन लगा फिर मुसाफिर खाना ही है ना, सरां ही है। पहला दादा सी फिर पिता रहा, अज तू है ते कल नूं तेरी औलाद ने रहना है ते मुसाफिर खाना। ये दुनिया भी मुसाफिर खाना है, इस शहर है। इब्राहिम के मन के अंदर बड़ी गल लगी। घर बार छोड़ के वो कब्रिस्तान दे च रहन लगा। घर दे जी आए, जिहड़े वजीर सन वो आए, आखन लगे इब्राहिम नूं तुसीं क्यों जाके कब्रिस्तान दे च बैठ गए हो, घर चलो ये उजाड़ है, वसदी विच जाके रहो, उजाड़ च क्यों रह रहे हो। ते अगों इब्राहिम ने एक गल कही सी, आखन लगा असल दे विच वसदी हुई एक कब्रिस्तान है, क्योंकि इतों उठ के मैं किसी नूं जांदियां नहीं देखिया, सगों जिन्हां नूं तुसीं वसदी कहंदे हो उसते वसदे हुए लोग इत्थे ही आके उन्हें टिकाणा मिलता है। जिन्हों बाबा फरीद साहब आखते हैं कि फरीदा गोर निमाणी सड करे। गौर कहते कबर नूं कि कबर जड़ी है वो निमाणी सड करे, आवाजा मारदी है कि नहीं करिया घर आओ, ए बेघरे इंसान तेरा असली घर यही है। गोर निमाणी सड करे निघरिया घर आओ, मैथे सर पर आवना। कहने कि इत्थे ते तुसीं जरूर ही आना है, सर पर तू भावें जरूर ही। मरनों ना डरियाओ, मरण तू ना डर, असली घर तेरा एक कब्रिस्तान ही है, इत्थे तू पहुंचना ही है। पर सच जानना उस कब्रिस्तान दे विच जा मिट्टी तक पहुंचण तो पहला, काल तक पहुंचण तो पहला ए इंसान तू अकाल तक पहुंच जाए। मिट्टी की यात्रा मिट्टी तक पहुंचनी है, तू काल तक पहुंचे इस तो पहला तेरी आत्मा अकाल तक पहुंच जाए, परमेश्वर का तू रूप हो जाए। हुण जदों असीं ये पक्ष रखते हाँ कि दुनिया के महल माड़ियां इन्हां दे विच जीव रुझिया हुआ है, तो गुरुदेव नूं सवाल किया, गुरुदेव पातशाह की दुनिया अंदर महल माड़ियां ना होण। हुण देखो दूसरा पक्ष भी सानूं विचारना पेगा। गुरु नानक सच्चे पातशाह आखन लगे कि रज रज के सोने घर बनाओ, दुनिया के सारे सुख तुहाडियां झोलियां विच होण, पर एक गल याद रखना कि मोती तां मंदर उसरै, पहला शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह का। जदों असीं नितनेम दीआं बाणियां जपजी साहिब, रहराज साहिब, 16 साहिब तो बाद जो पहला श्री राग का बचन है, गुरु नानक सच्चे पातशाह ने कि मोती ता मंदिर उसरै। अज महलों की गल हुई, अज घर की गल हुई है, तो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने कि मोती ता मंदिर उसरै, मोतियां वर्गे तेरे घर उसरे होण, रतनी ता होए जड़ाओ विच रतन जड़े होण कीमती, पाओ के दुनिया के सारे सुख होण। कुस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, कुस्तूर कुंगू तो भाव सोहनी सुगंधी होए। अज असी परफ्यूम वत लैंदे हां। गुरुदेव पातशाह ने कि कुस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, पर अगे आखते ने कि मत देख भूलां विसरै, तेरा चित ना आवे ना। इन्हां भुलां दे अंदर रह के ए इंसान तेनू हरि परमेश्वर दा नाम ना विसर जाए, क्योंकि गुरुदेव आखते ने मैं अपना गुर पूछ देखिया, मैं अपने गुरु नू पूछ के देख लिया कि अवर नाई थाओ, हरि तो बिना होर कोई थां है ही नहीं।
इसलिए गुरु की शरण च आके परमेश्वर का नाम जप। दुनिया के सुख मुबारक ने तेनों, दुनिया के सारे सुख भोगे, तेरा सोहना घर होए, घर दे च रहन वाले सारे परिवार सुखी वसन, सारे घर के मैंबर सोहने वसदे होण, सारे दुनिया के सुख हंडाए, पर उस मालिक नूं परमेश्वर नूं अपने हिरदे च वसा के रख। सोलह साहिब की बाणी अंदर असी रोज पढ़ते हाँ, करो बेनती सुनो मेरे मीता। मालिक जी मैं बेनती करदा हाँ, मेरी बेनती नूं सुनो। करो बेनती सुनो मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हर लाहा। के संसार रूपी घर दे च आके परमेश्वर दे नाम रूपी तानू खट, आगे बसन सुहेला, तेरा अगा सुहेला हो जाएगा, अगा सफला हो जाएगा। पर गुरुदेव आखते ने कि मन गुरमिल काज सवारे, गुरु नूं मिल के अपने जीवन का कार्य सवार लै। करो बेनती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हर लाहा, आगे बसन सुहेला। औद घटै दिन सरहण आरे, औद घट रही है, उम्र घट रही है, औद घटै दिन सरहण आरे। मन गुरमिल काज सवारे, गुरु नूं मिल के ये जीवन का कार्य सवार लै। जो भई प्राप्त मानुक दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया। इस कार्य नूं सवार लै। धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जिन्हां दी शरण दे विच जदों भाई लैणा जी आए, भाई लैणा जी ने तकरीबन 7.5 साल गुरु नानक सच्चे पातशाह की शरण च रह के सेवा कमाई है। ते जिस गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं लोकां ने नहीं पछाणिया, मैनूं कहण देना परिवार के जियां ने भी नहीं पछाणिया, केवल बेबे नानकी है जिसने जानिया सी कि मेरा वीर परमेश्वर का रूप है, कोई होर नहीं, किसे होरां ने ते पछाणिया नहीं। पर भाई लैणा जी जिन्हां दे परथाए सत्ता और बलवंड जी अपनी बाणी अंदर लिखते ने कि करै जो गुर फरमाया, सिल जोग अलूनी चट्टी है। कि धन गुरु अंगद दे सच्चे पातशाह तुसी ओ काम कीता है कि करै जो गुर फरमाया, जो गुरु ने फरमान कीता, जो गुरु नानक सच्चे पातशाह ने हुक्म कीता, महाराज ने 7 बचन करके मनिया। करे जे गुर फरमाया, सिल जोग अलूनी चट्टी है, जिवें अलूनी सिल नूं चटना, ते अलूनी सिर जिस दे नाल कई बारी जिहवा भी छिल जाती है। भाव के गुरु नानक सच्चे पातशाह दे बचनां नूं 7 करके मनिया। ते जदों धन गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज गुरता गद्दी भाई लैणा जी नूं देंदे ने, भाई लैणा जी नूं गुरता गद्दी का तिलक बख्शिश किया, गुरता गद्दी पर विराजमान किया। ते जिहड़े गुरु नानक सच्चे पातशाह जिन्हां दे अगे सारा जहान सारी खलकत चुक गई, पर गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं झुका ना सके, वो गुरु नानक सच्चे पातशाह महाराज ने अपना सीस भाई लैणा जी गुरु अंगद दे महाराज के चरणों के मत्था टेक के आखिया, अज तो बाद गुरु धन गुरु अंगद देव महाराज ने। ते विरोधता भी की बच्चियां ने, होर भी सिखां ने, पर धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने परवाह नहीं की। ते एक गल करके मैं समाप्ति वाल हुआ। जदों धन गुरु नानक सच्चे पातशाह के साहबजादे श्री चंद लक्ष्मी दास लोगों ने भी आख्या कि इन्हों गुरता गद्दी तुसीं क्यों नहीं दिती। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने अपने तली के उपर एक टका रखिया। एक करतारपुर की घटना है। करतारपुर की धरती के उपर गुरु नानक सच्चे पातशाह ने एक टका रखिया। ते बाबा श्री चंद नूं कहन लगे, आखन लगे मेरी हथेली पर की रखे है। बाबा श्री चंद कहन लगे जी एक टका रखिया हुए। गुरु नानक सच्चे पातशाह लक्ष्मी दास नूं कहंदे, लक्ष्मी दास तू दस मेरी हथेली पर की रखिया हुए है। वो आखन लगे गुरु नानक सच्चे पातशाह ने, पिता जी हथेली पर तो एक टका ही है, एक टका ही रखिया हुए।
गुरु नानक सच्चे पातशाह आखणगे लैणिया तू दस कि हथेली पर की रखे है। लैणा जी चुप ने, खामोश ने, मुख तो कोई बचर नहीं। फिर गुरु नानक सच्चे पातशाह ने आख्या लैणिया तू दस साडी हथेली पर की रखे है। ते लैणा जी आखणगे सतगुरु पातशाह लोग देखते होणगे कि आप दी हथेली पर एक टका है, पर सच ते यह है कि आप जी दी हथेली पर जप है, तप है, सिमरन है, बंदगी है, सेवा है, इत्थों तक के लोक परलोक आप दी हथेली पर रखिया हुए। महाराज ने आख्या मैं इसे करके लैणे नूं गुरता गद्दी बख्शिश की है, क्योंकि लैणा जी ने अपना आप समर्पण किया ते जिन्हां ने गुरु दे चरनां दे अपना आप निवार के भेटा करके मालिक दी सेवा की है। गुरुदेव आखदे ने कि मुबारक ने उन्हां दे घर भी मुबारक ने, उन्हां नूं सारे दुनिया दे सुख मुबारक ने। पर गुरुदेव आखदे ने मैं अपना गुर पूछ देखिया, मैं अपने गुरु नूं पुछ के देख लिया कि अवर ना ही थाओ होर कोई थां है ही नहीं, इस मालिक दी शरण च पै जा। अज दे इन्हां पावन सलोकां अंदर जो मैं फिर दोहरा दियां, बाबा फरीद साहब आखदे ने फरीदा कोठे मंडप माड़ियां, कोठे ने सोहने महल बने हुए ने, मंडप ने जो वक्तिया तौर के उपर मंडप तैयार किए हुए ने, घर के सामने या घर की छत के उपर जो मंडप बनाए जाते हैं, डेकोरेशन की जाती है किसी फंक्शन लई। माड़ियां तो भाव जो दूसरा फ्लोर है माड़ी बनाई गई है, एत ना लाए चित इन्हां दे नाल चित ना ला, क्योंकि दुनिया के अंदर मनुख ने इन्हां दे नाल चित लाया है। पर धन गुरु अर्जन देव महाराज आखदे ने कि जो घर छड़ गवावना सो लगा मनमाहे, जिथे जाए तुद वरतना तिसकी चिंता ना है। फिर की होएगा, मिट्टी पई अतोलवी, इस तन दे उपर इतनी अतोलवी अमणवी मिट्टी पै गई, कोई ना होसी मित। ते बाबा फरीद साहब ने तो इत्थों तक ये है कहने कि तन का बड़ा तू हंकार करदा है इंसान। एक दिन जदों जाके कब्रिस्तान दे दफना दिता गया, इट दा तैनूं सराहना दिता गया, दफनाण वेले इट सराहने रखी जाती है, फिर अमणवी मिट्टी उहदे उपर पा दी गई। बाबा फरीद साहब आखते हैं कि इट सराहने भोए समन जमीन ते लिटा दिता गया, कीड़ा लड़ियो मास, कुछ समय बाद शरीर दे विचों ही कीड़े पैदा होंदे ने जो मास नूं खांदे ने, फिर उन्हां कीड़ियां दा विनाश हो जाता है। यह विज्ञानिक पक्ष है। कीड़ा लड़ियो मास, कितने युग वापरे, कितने युग वापर गए, एक तपया पा जिथे तू पिया सी उत्थे ही पिया, तू पासा भी परत करी देखे आ। मिट्टी पई अतोलवी कोई ना होसी मित। अगले श्लोक अंदर आखदे ने फरीदा मंडप माल ना लाए, कि ना मंडपां दे नाल महलां दे नाल और धन पदार्थ दे नाल तू चित ना जोड़, मर्ग सताणी चित धर, मौत नूं सदा याद रख जो बड़ी बलवान है। बाबा फरीद साहब आखदे ने कि मलकल मौत जां आवसी सब दरवाजे भन। और फिर कोई दरवाजा तेरा कारगर नहीं होएगा, भावें दवाइयां का दरवाजा है, भावें वैदां का दरवाजा है, भावें भरावां का दरवाजा है, रिश्तेदारां का दरवाजा है, ताकत का दरवाजा है, धन का दरवाजा है, सारे दरवाजे तोड़ के आ जाएगी। मलकल मौत जां आवसी सब दरवाजे भन, तिन्हां प्यारिया भाइयां अगों दिता बन। बाबा फरीद साहब आखदे कि फरीदा मंडप मालन लाए, मर्ग सताणी चित धर, साई जाए संभाल, जिथे ही तो वंजना, जिथे तू जाना है, जिथे तू मुकाम मालिक दे चरनां दे प्राप्त करना है, उसलिए परमेश्वर दे नाम दा आसरा अपने जीवन दे कमा। दुनिया दे सुखां नूं भोगदियां होइयां भी निरंकार नूं अपने हिरदे च वसा। यही पावन श्लोक दे अंदर अज बाबा फरीद साहब जी ने यह पावन उपदेश बख्शिश किया है। साध संगत बोलदियां बेअंत भुल्लां गुरु समर्थ है।